Big day today in Indian politics because today the Congress announced the next leg of their flagship mobilization program, the Bharat Jodo Yatra. In a declaration of the beginning of their election campaign for 2024, the party green flagged what is going to be known as the Bharat Nyaya Yatra of Rahul Gandhi. This yatra comes at a very interesting time when the Prime Minister's Viksit Bharat Sankalp Yatra is already underway. Started in November, the Viksit Bharat Sankalp Yatra aims at reaching out to beneficiaries across the country in 2.7 lakh panchayats till the 25th of January 2024, which means that the Viksit Bharat Sankalp Yatra will go on for almost 2 months. The total amount being given to people through government schemes in that period is 24,000 crore rupees. So while the Prime Minister is taking government schemes to the last mile, to the disadvantaged, Rahul Gandhi aims to take the message of unity, harmony and love to the Janta. What will this entail? Well, the Bharat Nyaya Yatra starts from the 14th of January. It continues till the 20th of March, covers 14 states, 85 districts and a total of 6,200 kilometers. The day span will be 65 days. The model will be slightly different from Bharat Jodo. Here there will be a mix of bus rides and Padyatra in order to connect with as many people as possible. Among the states being covered are Manipur, West Bengal, Bihar, Jharkhand, UP, MP, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. While the stated objective of the Bharat Nyaya Yatra is quote-unquote Arthik, Samajik and Rajnetik Nyay, the Congress insists that ultimately it is not about politics but about saving democracy. आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। इनमें से अनेक साथी ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही कभी ये पता चल पाता कि वो भी सरकारी योजना के हकदार हैं। उनको तो पुरानी आदतों के कारण यही सोचते होंगे भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, तो हमारा तो क्या होगा। अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है। 10 साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार जाते। This is not a political yatra. Don't think that it is. We are not going to make it as a big political yatra. Already Jairam ji mentioned about the issues. We are going to raise these issues of the common people of this country. For BJP, everything is political. For us, it is this yatra means to spread love and affection and towards the people of India, and we believe that this yatra will make India united and India more stronger. देखिए, राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली वो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और निश्चित रूप से अब जो एक और यात्रा जो निकलेगी उससे युवाओं के और देश के प्रति जो उनका प्यार है वो दर्शाता है और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी के होंगे उस यात्रा के माध्यम से विभिन्न जगहों पर वो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए इसका फायदा होगा। Interesting indeed that the two main parties in the fray for 2024, the Congress and the BJP, are both using yatras to reach the voters directly, although in very different styles. The question is, which is more effective? The BJP naturally is calling the Nyaya Yatra a publicity stunt, but what's interesting are some of the remarks that came from even allies of the Congress. क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो वो न्याय क्या दिलाएंगे जिनके अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। Only if he had studied the history of his own party and his own governments in the past, he would understand that Nyaya Yatra should happen in the places like Karnataka, where you are forcing women to wear hijab, where you're working against the social justice. Bharat Todo Group was the one who was doing Bharat Jodo Yatra. ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफी कुछ करते रहते हैं। You see, that is completely their own party matter. They have every right to start a new program on behalf of their party.
and Congress has to some damage control programs. So with this blowing of the poll bugle in right earnest, which yatra will strike a chord, and more specifically for the Congress in their quest for Nyay, will their allies march in step with them? Joining us on the debate, Siddharth Yadav, spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Vinod Agnihotri, senior journalist, Vivek Srivastava, political analyst, author Sanjay Jha, and national spokesperson of the Samajwadi Party, Manoj Yadav. But I actually want to start with the non-political voices. Harshvardhan, to you first. Let's take a look at the states through which the Bharat Jodo Yatra is going. All right, so let's just take a look at the states through which they are going. There are 355 Lok Sabha seats in these 14 states. 355 Lok Sabha seats, where this is not the graphic that we're talking about. Let's just take a look at the map of India. 355 Lok Sabha seats, 14 states. India has 67 seats in those. Out of 114, there are 67 seats across those 14 states, and the Congress has only 14. Rahul Gandhi is clearly going in for the kill. These are largely states where the BJP has maximum Lok Sabha seats, and yet Rahul Gandhi is going to seek Nyay in those states. पद्मजा जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि कम से कम लोकसभा चुनाव के पहले तक बिना किसी इंटरवल के राहुल गांधी पॉलिटिक्स करते रहेंगे, निरंतरता में रहेंगे, क्योंकि ऑन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत देश में काम नहीं करती है, ये शायद राहुल गांधी भी समझ गए हैं। और अगर इस यात्रा को देखें तो कमाल ये है कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी बात अगर आपको एस्टेब्लिश करनी है तो पहले खुद तैयार होना पड़ता है, फिर उसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ता है, साथ में लोग आते हैं। और कमाल देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव आते आते ये जो यात्रा हो रही है वो भारत न्याय यात्रा में पहुंच गई। लेकिन यात्राएं बुरी नहीं होती, यात्रा तो हर अच्छी होती है, लेकिन सवाल यहां यही है कि जिस समय में कांग्रेस पार्टी को अपना सीट सिलेक्शन करना है, जिस समय में अपने कैंडिडेट स्ट्रांग उतारने हैं, जिस समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने 300, 350, 400, 450 जितनी सीटें तय कर पाए वो करना है, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी को यह ज्यादा बड़ी जरूरत लग रही है कि बिहार है, बंगाल है, दूसरे ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, जहां सहयोगी बहुत मजबूत हैं, वहां राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के जरिए वो अपनी ताकत दिखाएं। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम क्या रहा, कोई कह सकता है कि 2-2 हो गया, कर्नाटक तेलंगाना जीत गए और मध्य प्रदेश राजस्थान हार गए, लेकिन इसको मैं कुछ दूसरी तरह से देखता हूं। जब आप भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम की बात करते हैं तो आप देखिए उसके बाद ममता बनर्जी कह देती हैं कि राहुल गांधी ने एक इमेच्योर बिहेवियर कर दिया वीडियो बनाकर। अब आप सोचिए, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक किया था, राहुल गांधी ने वीडियो बनाया था और ममता बनर्जी कह देते हैं कि इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा जो संकट है, उसके पास अपना कैडर नहीं है, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है, उसके पास सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं है और कोई मोमेंटम आज की तारीख में नहीं है। इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में हारने के बाद स्थिति और खराब हो गई। शायद तो वही तो मोमेंटम बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो मोमेंटम बढ़ेगा इससे? नहीं पद्मजा जी, वही मैं कह रहा हूं, मोमेंटम कैसे बढ़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में भारत न्याय यात्रा का मोमेंटम बढ़े? क्या बिहार में लालू यादव जी चाहेंगे कि एक स्तर के आगे बढ़े? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चाहेंगी? और यह सवाल खड़ा होगा पद्मजा जी। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आजाद भारत में इस तरह से अपने काम के आधार पर वोट मांगने वाली पहली सरकार है। ये कोशिश अलग अलग सरकारों ने की होगी, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कीम पर है। वो कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, ये राम मंदिर को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन आप देखिए तो उसमें सिर्फ लाभार्थी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर अपने नेता तैयार कर ले रहे हैं, आपके पास मोदी जैसा नेता, दूसरी तरफ आपके पास कार्यकर्ता और नेता नहीं है। ऐसे में टीवी की बहस में चुनाव तक राहुल गांधी बने रहें और जो सहयोगी हैं उन पर दबाव बन सके, इसके लिए ज्यादा दिखता है। विनोद जी, नो मोमेंटम, सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश। माहौल और मोमेंटम बात तो एक ही है ना। मोमेंटम तभी बनता है जब माहौल होता है, माहौल तभी बनता है जब मोमेंटम होता है। पर उस माहौल से वोट मिलेंगे?
अब ये एक प्रश्न है, निश्चित रूप से ये प्रश्न है कि वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमारे पास सामने दो तरह के उदाहरण हैं, तेलंगाना कर्नाटक का भी है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भी है, कि जहां और राजस्थान का, जहां वोट नहीं, मतलब अब वो विश्लेषण अलग है, वोट मिला कि नहीं मिला, लेकिन हारी है पार्टी वहां पर इन तीनों राज्यों में। मैं ये कह रहा हूं, एक तो हर्षवर्धन जी को मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि आज़ाद भारत में पहली बार नहीं, मनमोहन सिंह ने भी 2009 में काम पर ही वोट मांगा था, मनरेगा पर, कर्ज लोन वेवर पर, न्यूक्लियर डील पर। तो सरकारें आती हैं अपने काम के साथ, वो भी काम पर ही वोट मांगा था। तो दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी, देखिए जो यात्रा आपकी शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, वो 30 जनवरी को समाप्त होती है और चुनाव होते हैं नवंबर दिसंबर में। तो क्या होता है उसका असर? मई में चुनाव हुए कर्नाटक के, उसका असर आपको दिखाई पड़ा, लेकिन नवंबर दिसंबर के जो चुनाव छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुए तो असर तिरोहित हो गया। मुझे लगता है ये इसीलिए इन्होंने रखा है कि जिस 20 मार्च को जब यात्रा समाप्त होगी तब देश चुनाव में प्रवेश कर चुका होगा, क्योंकि घोषणा हो चुकी होगी और प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। तो जाहिर है वो ताजा जो ये मुद्दे उठाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जो माहौल मोमेंटम जितना बना पाएंगे वो बनेगा, तो उसका कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी को लगता है कि शायद मिले, नंबर एक। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि इस यात्रा से खाली कांग्रेस का फायदा होगा। जब इंडिया गठबंधन के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे तो मुद्दे तो वही होंगे जो इंडिया गठबंधन के होंगे। इस न्याय यात्रा में सारे मुद्दे, सामाजिक न्याय यानी जातिवार जनगणना, आर्थिक न्याय, गरीबी अमीरी, या आपका राजनीतिक न्याय, संविधान और लोकतंत्र, ये सारे तो भारत जोड़ो में उठा चुके थे, और उसके बाद क्या नतीजे आए? नहीं, 3 मेजर स्टेट्स हार गए। मैंने कहा ना कि दोनों तरह के नतीजे हैं। तेलंगाना में आप सोच सकते नहीं जीतेगी कांग्रेस, कौन सोच सकता था उसमें? वो भारत जोड़ो से थोड़ा ना जीते, वो तो एंटी इनकम्बेंसी। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी को बनाने के लिए पार्टी तो खड़ी हो गई ना। जब पार्टी खड़ी होगी तभी तो जीतेगी। तो भारत जोड़ो से खड़ी हुई, निश्चित रूप से। जहां कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल एकदम कमजोर थी, 18-19% वोट बढ़ाना किसी मामूली बात थोड़ी है, कोई एक्शन तो होता है, क्योंकि पार्टी का ढांचा वहां खड़ा हो गया। यहां ढांचा था, छत्तीसगढ़ सरकारें थी, आपकी सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, छत्तीसगढ़ राजस्थान में नंबर 1, और दूसरा आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे, आपने जिस अहंकार के साथ चुनाव लड़ा वो फिर बहस। तो वही ढांचा खड़ा कराना काम है राहुल गांधी का। क्विक रिस्पॉन्स हर्षवर्धन जी, आई वांट टू ओपन दिस अप। यस, सिर्फ 2 लाइनें। अगर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को 2009 में कर्ज माफी पर चुनाव लड़ना पड़ा, वो उनका मुद्दा था, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं। इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया आर्थिक तौर पर, देश के लोगों का कोई और भला नहीं किया, सिर्फ इस तरह की योजनाओं के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते थे। तो फिर तो लाभार्थी भी जो है उनको भी शर्मनाक हो जाएगी कि आप खाना खिला रहे हैं। अगर ये राहुल गांधी, अगर मनमोहन सिंह पे बात लागू होती है हर्षवर्धन जी, तो ये बात मौजूदा सरकार में लागू हो जाएगी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी बिल्कुल। और अगर उस बैठक में सारे नेता तय करते कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा होगी, तो मैं भी आपके साथ कहता कि ये विपक्षी गठजोड़ मजबूती से हर राज्य में आगे बढ़ेगा। ये राहुल गांधी को दूसरे नेताओं के मुकाबले ठीक से बनाए रखने की कोशिश है। जो ममता जी कह देती है ना कि अपरिपक्व नेता है, मेच्योर पॉलिटिशियन बनाने की कोशिश, संकट है यहाँ। एक क्विक रिस्पॉन्स, एक सेकंड, अलायंस पे आई विल कम बैक, बिकॉज़ अलायंस 10 सेकंड। हाँ। देखिए, कोई भी पार्टी अपना कार्यक्रम करती है तो अपने बैनर से करती है। भारत विकसित यात्रा जो बीजेपी की चल रही है, उसमें क्या एनडीए शामिल है क्या? बीजेपी की यात्रा वो कार्यक्रम है ना। या जो दूसरे दल, अडवाणी जी की राम रथ यात्रा निकली तो कौन सा उसमें उनके सहयोगी दल शामिल थे? बाद में अपनी इच्छा शामिल हो गए, नाम तो बीजेपी की यात्रा का था। हाँ, तो एक चीज है शामिल होना, दूसरी चीज है क्रिटिसाइज करना। बट एक सेकंड, हम अलायंस पे वापस आएंगे। पहले इस यात्रा थोड़े बीजेपी को थोड़ी सी रात की नींद तो नहीं उड़ी हुई है, बिकॉज सिद्धार्थ यादव, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द एक्सपेंस ऑफ दिस यात्रा। Yes, Bharat Jodo continued for 145 days. Bharat Nyaya Yatra is slightly shorter. It is 67 days. However, as opposed to Bharat Jodo, which was 3,500 kilometers, this time Rahul Gandhi will cover almost double, 6,200 kilometers, and 14 states as opposed to 12 states of Bharat Jodo. Most of them are states where you have a majority of Lok Sabha seats. जिसको कहते हैं ना, वो घर में घुस के मार रहे हैं आपको। Padmaja, I don't think that is the case, because in reality this yatra is nothing more than a self-branding yatra. It is to launch a leader who has a faulty launching pad and who has been tried to be launched from so many years but was unable to launch himself,
and now these yatras are trying to position him that he is a leader, he is a big leader. But I think it is good. The opposition should do this, and especially the Congress, especially the leaders who have such God complex, who have never gone to the people, who have never understood really what the people want, what is their pulse, what is their sentiment. They should really go to the people and understand, because probably going to them will make him understand what is today morning he went to the Akhada. He met the wrestlers over there. He has been to Manipur. He has gone and met, vegetable traders at Azadpur Mandi. He has made that effort over the last 6 months to go out, even despite the yatra. Very right, Padmaja. And, see, this is the reality. We are debating that finally a leader, aparipakwa, always remaining to be a youth leader, is finally going to people. This is a sight of relief for all of us, because we want the opposition to be stronger. A leader on which the entire Congress party, the oldest party of this country, is relying so much. Till last year, until his PR agency was telling him where to go, what to film, what to document, how to come out with good reels, did not even know where to go. Okay, and on it's the only other hand, it is Bharatiya Janata Party who's Sanjay Jha, working and with the self-branding, people says for the BJP. पद्मजा जी, यही अहंकार, यही गुरूर भाजपा का विनाश होगा 2024 में, ये मैं भविष्यवाणी करना चाहूंगा। आप देखिए, उनके प्रवक्ता यहाँ के हंस रहे हैं। इनके प्रवक्ता ये भी नहीं जानते, थोड़ा शर्म से थोड़ा चेहरा नीचे कर दीजिएगा। मणिपुर में क्या हुआ वो दुनिया जानती है। आज तक भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचे। सुनिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, आपको मैंने नहीं टोका था। यात्रा प्लीज, बीच में मत टोकिए। यस, बीच में मत टोकिए, हम बोल रहे हैं, बीच में मत टोकिए, तो हम भी बोल देंगे। शांति से सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे वहां पे, अरे काहे बीच में टोक? अरे, his voice is not going on air, Sanjay Jha, only you are speaking. Go on. Yeah. So I'm making a point. Rahul Gandhi has already been to the troubled Manipur. Narendra Modi has ducked and dodged it despite being the Prime Minister of India. And India has seen what horrific violence has happened in Manipur. Sir, I don't mean to sound insensitive, but 3 months after that, there was election in neighboring Mizoram. BJP won one more seat than the Congress in Mizoram. Yeah, but Padmaja, let me finish. Do you know that? And in Mizoram, the Manipur conflict was a very major issue. आपको बोलने दीजिए, जरा बोलने दीजिए। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री थे, जो सहयोगी थे भाजपा के, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, मोदी जी मिजोरम मत आइए। और वो खुद अपनी सीट हार गए। हम चाहते क्या मिजोरम नहीं? He lost his own seat. सुनिए ना, can you imagine how much of an embarrassment the Prime Minister of India became for Mizoram because the way he neglected Manipur? Now here's my second point. आज एक बहुत बड़ा एक खबर है जो सिद्धार्थ जी शायद इसका जवाब दे दें। 40,000 करोड़ का घोटाला आप लोगों ने किया था कोविड को लेके कर्नाटका में, और हम नहीं कर यात्रा कर रहे हैं। ये हाल है देश का। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी ट्रिप is absolutely timely. India will change, and a week is a long time in politics. देखिए ये हंस रहे हैं, 40,000 करोड़ का घोटाला, देखिए ये टीवी में हंस रहे हैं। देखिए जितने दर्शक है टाइम्स नाउ के, देखिए इनके चेहरा, इनके लिए मजाक है। पैसा खाओ, जितना खाना है खाओ, खाते रहो, लेकिन दुनिया देख रही है आपको सिद्धार्थ जी। Should I answer you? And these are the messages that Rahul Gandhi will drum home. Should I answer you, Sanjay Jha? Yes, go on, Siddharth Yadav. Actually, I'm not laughing on what Sanjay Jha is saying. I'm laughing that he is saying something. संजय झा, आई डोंट नो व्हाट, आपको भी क्या मजबूरियां हो चुकी हैं, हो जाती हैं सब लोगों के साथ मजबूरियां, बट हम बहुत डिबेट कर रहे हैं, बट आप इस प्रकार की बात मत करिए। आज 40,000 घोटाले की बात करनी है, सच में आप वैसी बात करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हैं, एक पूरी डिबेट करिएगा, कौन कहां कितना है, किसने कितने किसके अलमारी में से निकल रहा है, अलमारी में से अलमारी भरी हुई है, कहां से कहां पैसा निकल कर आ रहा है, वो रियलिटी है देश की। आपका झूठा प्रोपेगेंडा नहीं है, योर 2 minutes ऑफ फेम नहीं है सर। आप 2 minutes ऑफ फेम के लिए नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके कुछ भी बोले और आपको लगता है कि उस पर हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आपकी पूरी पार्टी फ्रॉम टॉप टू बॉटम यात्रा। संजय Jha's argument is कि भाई whatever corruption etc is happening, the Congress is not able to take the message to the people. Rahul Gandhi will ensure that it's drummed home during the yatra. The yatra is going to be Padmaja, I'm sorry, I would not BJP. laugh, but Rahul Gandhi is going to take the message of corruption. Rahul Gandhi.
अभी आज ही उनके साले रॉबर्ट वाड्रा का ईडी ने अभी आज ही उनका एफिडेविट फाइल हुआ है, उनको भी समन किया जा रहा है जो द रेनोवेशन दैट ही हैड डन फॉर हिज लंदन होम, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई है। द फैमिली वाज डाउन इन करप्शन, द फैमिली व्हिच इज सोर्स ऑफ करप्शन। हाँ, absolutely. The family which is the source of corruption in this country, they are going to take the message of corruption. Now, if this is the yatra for that, I again say this is not for any such thing. ये the reality is टुकड़े टुकड़े बोलने वाले goes ahead with Bharat Jodo Yatra. The people who loot this country, who take this country down in corruption, are going for nyay. Who have always fought for appeasement, who have always done appeasement, are talking about nyay. This is nothing for that. Okay, this is you are saying that the message does not Another carry failed weight attempt because that of the Congress messenger. want to do. There is We are not another considering problem, it. and this is where I want to bring in the Samajwadi Party and Vivek Srivastava as well. Let's take a look at the states through which it is going to go and how each state has a very kahani ghar ki sort of problem involved there. Why? Because a lot of these states, if not where the BJP is powerful, are states where INDIA allies are in power. Take a look at Manipur, for example. Here, there is a seat sharing problem that the Congress is going to face. Next, when we talk about states like Bihar, Bengal and Jharkhand, Meghalaya also similar, seat sharing. Bihar, Bengal and Jharkhand. In the case of Jharkhand, already Member of Parliament Mahua Maji has said, listen, this is basically a JMM issue. You should leave most of the seats in the Lok Sabha to us. Congress doesn't really have a stake here. Similar is the problem in West Bengal as well. PM phase seat sharing is a sticking point there. In Bihar, everyone knows about the big sulk that Nitish Kumar allegedly was said to have thrown. Seat sharing PM phase is a problem in Bihar as well. And let's not even get started on Uttar Pradesh. Now, do you think, Vivek Srivastava, that allies are going to be marching in step with Rahul Gandhi in this Nyay Yatra? उनको अपने खुद के alliance partners से न्याय मिलेगा? Because I remember when Bharat Jodo passed through Kerala, actually the CPM had tweeted to say, you're spending 9 days in Kerala but only 2 days in Uttar Pradesh. How are you going to fight the RSS? Right. See, first of all, I would like to tell you that for the last 70 years and even before that, the left has had a very comfortable relationship with the Congress party, even pre-independence. And later on many issues we supported them, and on certain issues we also opposed them. We have been fighting with them in Bengal, we have been fighting them in Kerala, we have been fighting with them in other states in the past. However, we feel that Congress is a very secular party. Congress has made a major contribution to this country in terms of protecting the social fabric of this nation, Dalit upliftment, social justice. So, I mean, when we keep that in picture, we respect the Congress and we believe that, India Alliance has to stay together. So, just like 2004, where certain alliances will be pre-poll and certain might happen even post-poll. This is going to happen, and finally, once the results are out, then we decide what is what. Seat adjustments have to be done. Every party has got a right to go and canvass, and this Nyay Yatra, I think it's a very good concept, what the Congress is doing, and it is going to move across the nation. You know that after the caste census demand across all the states, the OBC vote went and increasingly went to the BJP. So let's not even get started. OBC vote थोक में बीजेपी को मिला. No. Those are नहीं वो देखिए, इलेक्शन एनालिसिस स्टेट का अलग होता है, नेशनल का अलग होगा. और सीधी सी बात यह है कि उसके बाद अब इनका जो सो कॉल्ड हिंदू कार्ड था, अब ये इनके पास चलाने को नहीं है. अब ये अचानक डेवलपमेंट पे आए हैं, डेवलपमेंट करी नहीं है, डिफेंसिव पे हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ा है. Speaking in very clear Hindi, so I mean the BJP is on a defensive. Okay, very quickly, Harshvardhan ji is smiling, so I'll let him respond. It always reminds me of a book that Barack Obama wrote called Audacity of Hope. Harshvardhan ji and then Sanjay Jha. Yes. नहीं, देखिए पद्मजा जी, विवेक जी ऐसी ही बात करते हैं कि मैं हमेशा प्रसन्न हो जाता हूं. तो ये जब भी शो पे रहते हैं कहीं भी तो बड़ा प्रसन्नता देते हैं. आप सोचिए जरा, आदिवासी और पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए कतार में लगकर मत दे रहे हैं. क्लियर मैंडेट ऐसा है कि मध्य प्रदेश में अगर सारी पार्टियां जो एक होनी चाहिए नहीं हो पाई, वो भी हो जाएं तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है. आधी से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी, जो पिछड़ी जातियों की सीटें थी, उसमें प्रचंड बहुमत से जीत लेती है. और पहले के आंकड़े भी इनको ध्यान में नहीं आते कि सारे सांसद, विधायक, एमएलसी वो किसके हैं. और आदिवासी सीटों पर भी 2 गुना,
मतलब जितनी सीटें भाजपा जीतती थी उससे 2 गुना। इसी कॉम्बो ने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी कांग्रेस पार्टी को एकदम से आउट कर दिया। उसके बाद अगर विवेक भाई इस उम्मीद से हैं तो मैं बस यही कहूंगा, विवेक भाई कम्युनिस्ट है। ऐसे ही ये लोग हमेशा छतरी खोलकर खड़े हो जाते थे मॉस्को की बारिश में, यहां कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो मुश्किल यही है, कांग्रेस इन्हीं सलाह ले रही है। Okay, Sanjay Jha quickly and then Manoj. You see, the BJP is nervous because they know that at the ground level there is a lot of anger and disaffection, and that's what the yatra will mobilize. Judega Bharat Jeetega India is a nara that is already caught on with the people of India. हमारे दोस्त मनोज जी और विवेक जी, हम लोग सब यहाँ एक साथ लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा कोई छोटा सोच नहीं है, छोटा नजरिया नहीं है। ये देश को बचाने का नारा है। ये जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया की बात हो रही है, तो मनोज जी को लाने से पहले आई वांट टू शो यू द स्ट्राइक रेट। I want to show you the strike rate of Bharat Jodo vis-a-vis Modi ki guarantee. How many elections happened after Bharat Jodo and what was the performance of the Congress party there? So Bharat Jodo happened between September 22 to Jan 23. 8 states went to polls after that, of which Karnataka, Telangana and Himachal Pradesh went to the Congress, which means the strike rate is 37.5%. As opposed to the Modi ki guarantee, it was announced on the 23 June. 5 states went to polls after that, and Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh is what was won by the BJP, which is a strike rate of 60%. But the more important question that I want to ask you, Manoj Yadav ji, आज जब न्याय यात्रा की बात हो रही है, तो न्याय यात्रा में आईपी सिंह जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। आपके पार्टी के ही हैं सदस्य, उन्होंने कहा कि 74 दिन शेष लोकसभा चुनाव को बचे हैं, द्वारे आई बारात तो समधन चली स्नान। देखिए, आईपी सिंह जी की अपनी मनोभावना हो सकती है, उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, और हर आदमी का अपना पैमाना होता है। किसी का 10 तक जाता है, किसी का 50 तक, किसी का 100 तक। तो हो सकता है आईपी सिंह जी का पैमाना वहीं तक हो। एक बात मैं कह दूं, शायद हो सकता है बात स्पष्ट हो जाए, चाहे हर्षवर्धन जी ने कही है, बीजेपी के लोगों ने कही है। देखिए, आप अपने काम दिखाइए। भारत विकास यात्रा शुरू कर रहे हैं तो एम्पायर ऑफ अडानी के अलावा दिखाने को क्या है आपके पास? 5 किलो राशन, शौचालय और वोट पड़ने से पहले 6,000 रुपए घूस इस देश के किसानों को, बस। और क्या बताओगे, क्या दिखाओगे? और 85 करोड़ राशन की वजह से देश का क्या बंटाधार विश्व लेवल पे किया है पता है? नरेंद्र मोदी ने इस देश की पूरी साख को मिट्टी में मिला दिया पूरे दुनिया के सामने कि भारत जैसा विकासशील देश आज 85 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, जो अन्न धन से परिपूर्ण देश है। लेकिन वो सिद्धार्थ यादव, आपको लगता है कि विकसित संकल्प यात्रा में घूस के पास और साख गिराई जा रही है? सारी चीजें स्पष्ट रिस्पॉन्स सिद्धार्थ यादव से अडानी के पास है, इसलिए बीजेपी को समझना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। Padmaja, I think this is the arrogance of the entire opposition that my friend from Samajwadi Party is laughing when he's saying Shauchalaya. In 60 years of your rule, you could not even make India defecation free. You could not even provide the basic amenities. You could not even provide them toilets. You could not do it. That is your shamelessness. You could not do it. That is your failure. And the Vikas Yatra is an epitome of your failures. Okay. It is showing the people of this country that there can be अगर दोनों यात्राओं को देखा जाए, एक जगह एक डिलीवरेबल है जहां पर साफ-साफ The Prime Minister has said that I want to go to the beneficiaries and ensure कि आप उनको जाकर के सिलेंडर देकर के आओ, आप उनके अब नया आभा कार्ड की बात की उन्होंने आज सुबह, जहां आपका सारा हेल्थ डेटा, डॉक्टर ट्रीटमेंट सब कुछ होगा, आभा कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ होना चाहिए। और एक अब ये भारत न्याय यात्रा जिसमें अगेन आज हमें बोला गया कि लार्जर ऑब्जेक्टिव इज कि संविधान बचाना है और प्यार बांटना है, विच इज अ मोर इफेक्टिव मैसेज। देखिए, विकसित भारत यात्रा सत्ताधारी दल की यात्रा है। जाहिर है, जब सत्ताधारी दल जनता के बीच जाएगा तो वो बताएगा कि हमने आपके लिए ये किया है, और वो बता रहे हैं कि हमने भाई जो है जो आपने गिनाए तमाम सारी चीजें, सिलेंडर, शौचालय, तो जनधन खाता, कि हम ये करेंगे। लेकिन नहीं, ये इंडिया यात्रा जो ये न्याय यात्रा है, ये अपोजिशन की यात्रा है। तो अपोजिशन का काम होता है कि पहले तो सरकार की खामियां बताए, ये हर अपोजिशन काम होता है। पर ये नेगेटिव कैंपेन नहीं हो जाता। अपोजिशन के पास क्या होता है, वो सरकार की खामियां गिनाता है, उसके बाद अपना विजन देता है। जब अडवाणी जी यात्रा निकाल रहे थे तो कौन सा तारीफ कर रहे थे तत्कालीन सरकार की, वो नरसिम्हा राव की या राजीव गांधी की? या जब बीजेपी ने अपने कैंपेन 2013-14 में किया तो सारा अटैक मनमोहन सिंह पे था, क्या उन्होंने मनरेगा की तारीफ की थी?
थी? क्या उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन तारीफ की थी? क्या उन्होंने जो है न्यूक्लियर डील की तारीफ की थी? न्यूक्लियर डील के खिलाफ तो सरकार गिराने पे आ गए थे जब लेफ्ट ने वापस लिया था। ओके, तो ऐसा नहीं है, अपोजिशन हमेशा सरकार पर अटैक करता है और सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, विजन उनको अपना पेश करना पड़ेगा। Okay, Sanjay Jha, what about a concrete vision? Even now, the problem with Nyaya Yatra is the same as Bharat Jodo. It's up in the air. पद्मजा जी, मैं आपको कहूंगा ये बहुत ही गंभीर और संजीदा विषय है। आज साक्षी मलिक को जाके पूछ लीजिए आप, और वो आपको जवाब दे देंगी कि न्याय क्या होता है। कि देखिए, प्रधानमंत्री जब ये आए, चैंपियन बन के आए, तो उनके साथ फोटो ऑप कर दिया, लेकिन जब भाजपा के एक नेता ने उन पर हमला किया तो कोई सुनने वाला नहीं मिला। देखिए, यही पाखंडी बनावटी राजनीति जो है ना भाजपा का, वो अब उसका पर्दाफाश होगा। दूसरी बात, मणिपुर में जो बड़े गंदे हादसे हुए उसको इस सरकार ने महीनों तक जनता के सामने नहीं आने दिया, इसी का अब खुलासा हो रहा है। और मैं समझता हूं कि भाजपा और उनके समर्थक बौखलाए होंगे, उनकी रात की नींद उड़ गई होगी। इंडिया अलायंस एक साथ लड़ेगा, देश के लिए लड़ेगा, देश के संविधान के लिए लड़ेगा, देश के प्रजातंत्र के लिए लड़ेगा और जीत के दिखाएगा। और ये घमंडी पार्टी जो इंडिया भी बोलने में इनको संकोच होता है, पद्मजा जी सोच लीजिए, इनको इंडिया बोलने में संकोच होता है। आप इंडी बोलते हैं, अरे इंडिया बोलो भैया। ओके, ग्रेट, फाइन। आप तो बिल्कुल मतलब भारत जोड़ो का आपने पूरा स्पीच दे दिया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर डूइंग अ ड्रेस रिहर्सल फॉर व्हेन यू आर इनवाइटेड, व्हेन इट पासेस थ्रू मुंबई। आई विल गिव द फाइनल वर्ड टू हर्षवर्धन त्रिपाठी। आर पीपल बीइंग अननेसेसरी हार्श टू राहुल गांधी? वो जब यात्रा नहीं करते थे, लोग कहते थे ये घर में बैठे रहते हैं। अब वो जा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी बकवास यात्रा है। मतलब करें तो भी प्रॉब्लम, ना करें तो भी प्रॉब्लम। नहीं पद्मजा, यात्रा तो बकवास हो ही नहीं सकती। मैंने शुरू में ही कहा कि इसके लिए तो बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन ये यात्रा देखिए कितना अच्छा होता। और ठीक है, टीवी की बहस में सबको करना है, पार्टियां जानती हैं कि लोग देख रहे हैं तो लड़ते हुए न दिखें, ये कम से कम अच्छा है कि प्रवक्ता लड़ते नहीं है। लेकिन कितना अच्छा होता ना कि जब गठजोड़ की बैठक हुई थी अभी राज्यों के चुनाव हारने के बाद, उस गठजोड़ से निकलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, वो कहते कि हम तय कर रहे हैं एक न्याय यात्रा निकलेगी, राहुल जी पूरे देश में घूमेंगे, अलग अलग राज्यों में हमारे गठजोड़ के ये नेता हैं वो साथ में चलेंगे, आगे आगे चलेंगे। आप मोमेंटम की बात जो कर रहे थे ना, जिस माहौल मोमेंटम जो विनोद जी ने कहा, एक ही तो है, नहीं है ना भाई, नहीं बन पा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ जो पार्टियां हैं, उनके नेता हर दूसरे दिन लंगड़ी मारते हैं और वो जानते हैं कि राहुल गांधी की एक क्षमता नहीं है कि उतने बड़े बन पाए। बार बार इसीलिए टिप्पणी होती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये अच्छा वाइज डिसीजन है कांग्रेस का, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, लोग नहीं है, तो टीवी की बहस में ऐसे ही तो चर्चा हो पाएगी ना, वरना आप क्या चर्चा करेंगे। और निगेटिव पॉलिटिक्स को ये देश नकार चुका है पद्मजा जी, ये फिर से मैं कह रहा हूं। और 10 सेकंड देखिए, मैंने जो कहा ना, मैं हर्षवर्धन जी की बात से 100% सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को इसको इस तरह से ही करना चाहिए था जो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, यात्रा निकलने दीजिए और उसका थोड़ा 2 महीना 15-20 दिन 25 दिन गुजर जाए, तब हम आकलन कर पाएंगे कि मोमेंटम और माहौल बना कि नहीं बना। सर, भारत जोड़ो आया और खत्म हो गया, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट इनविटेशन के लिए वेट करते रह गए, कहीं ऐसा ही माहौल न्याय यात्रा के साथ भी ना हो जाए। करते हैं तो कांग्रेस की मूर्खता होगी। मतलब अगर इस तरह की हरकत करते हैं, अगर वो नहीं बुलाते हैं, कांग्रेस की कामयाबी इसी में होगी कि सारे इंडिया गठबंधन के अलायंस को इसमें शामिल करें। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सीट शेयरिंग के मामले में भी अभी यही प्रॉब्लम्स है, बाकी जो अलायंस पार्टनर्स है, लेट्स होप इट हैपेंस सूनर रादर देन लेटर। थैंक्स वेरी मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस।